Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss about conditions for equilibrium. Now remember, if we have a reaction vessel like this and we have nitrogen and hydrogen in it to produce ammonia. Now equilibrium can be established if we have either of the pure reactants, that is nitrogen or hydrogen, if we have either pure products, that is pure ammonia, or we have a mixture of reactants or products in a closed vessel, then equilibrium can establish. Now remember, this is a gas phase reaction in which nitrogen, hydrogen and ammonia, all three gases are participating. If you place all of these, either two of these, either products only, in a closed vessel, then after some time reaction will attain equilibrium. Here rate of its forward and reverse reaction become equal after a certain time of proceedings. Now when we want to establish equilibrium in a closed vessel condition, following are the main three things that should be kept in mind. Number one, temperature should be constant. Reason behind this is, in chemistry, rate of reaction can be altered by variation in temperature. कूलिंग थ्योरी का थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया और हमने उसमें कहा कि कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे नंबर ऑफ कोलिजन्स को आप वेरी कर सकें, उससे इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। जब भी आप किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद आप टेम्परेचर को वेरी नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. When we increase the temperature of this reaction vessel, then the kinetic energy of these molecules will increase. Kinetic energy increase करने पर क्या होगा, उनका मूवमेंट रेट ज्यादा होगा. जब मूवमेंट रेट ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे. जब उनके चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज होते हैं तो हम कहते हैं ऑटोमेटिकली इफेक्टिव कोलिजन्स की रेशियो बढ़ जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर जाएगा. सो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, देन टेंपरेचर ऑफ दैट सिस्टम शुड बी केप्ट कांस्टेंट. नंबर 1. Number 2, you cannot vary the pressure of that system, means we have to keep the pressure constant. आपको सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है, because in chemistry temperature and pressure are directly proportional. If we increase the pressure, then gases compress. Upon compression there happens a decrease in their volume. Due to decrease in their volume, the same number of gas molecules which may be there in that container, they occupy less space, and because of this less space they are brought nearer to each other, and when they approach nearer to each other, then collisions among the molecule again increases. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक कमरे में 10 पर्सन्स रख दें या एक कमरे में 100 पर्सन्स छोड़ दें, तो जैसे सी बात है 10 लोगों के आपस में मूवमेंट पर कम कोलिजन के चांसेस हैं और 100 लोगों के आपस में कोलिजन पर कम ज्यादा चांसेस होते हैं. सो कोलिजन्स बढ़ते हैं. इसका मतलब है जब आप गैसेस में प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होने पर उनका वॉल्यूम कम होता है. वॉल्यूम कम होने पर सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जब लेस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं और करीब आने की वजह से उनके कोलिजन्स बढ़ते हैं और कोलिजन्स बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करेगा. इसका मतलब है रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाएगा. सो प्रेशर ऑफ द सिस्टम शुड आल्सो बी केप्ट कांस्टेंट. नंबर 3, concentration of either of the reactant or product should not change. When reaction approaches to equilibrium, then we can't change the concentration of either reactant or product. Again, due to variation in concentration, the amount of reacting particles or amount of product may get vary. और हमने पहले कहा कि concentration या amount vary करने से again molecules के क्या होंगे, कोलिजन रेट्स बढ़ेंगे. जब कोलिजन रेट्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर जाएगा. इसका मतलब है अगर आप किसी एस्टैब्लिश्ड रिएक्शन को जो कि इक्विलिब्रियम पर है और आप उसे चाहते हैं कि वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम में मौजूद रहे, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, तो आपको ना ही उस रिएक्शन का टेंपरेचर वेरी करना है, ना ही उस रिएक्शन में कोई प्रेशर चेंज लेकर आनी है, और ना ही उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में चेंज आना है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज फैक्टर इन वन वे और द अदर विल बी a source of increase in number of collisions among the molecule. और हम कोलिजन थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि जब भी इनमें से कोई फैक्टर वेरी करेगा,
कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करेगी और रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है हमारे पास वेरी करना शुरू हो जाएगा. We are going to discuss ways to recognize equilibrium. Now, what we have said that Kc is ratio between concentration of products and reactants. When we want to recognize whether the reaction is at equilibrium or not, there are different methods, either physical or chemical methods. जब हम physical methods के जरिए chemical equilibrium को determine करना चाहते हैं तो हमें वहां पर भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करना है. नाउ रिमेंबर, से हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं 2SO2 plus O2 gives us 2SO3, that is sulfur dioxide reacts with oxygen to produce sulfur trioxide. हम इस रिएक्शन के बारे में कब कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? जब हमें P/R की रेशियो में कंसिस्टेंसी मिल रही हो, यानी P/R रेशियो आपको कांस्टेंट मिल रही हो. कांस्टेंट P/R रेशियो तब मिलेगी आपको जब कन्वर्जन रेट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द कन्वर्जन रेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स. अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आती है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ का जो ट्रैवलिंग रेट है वो इक्वल नहीं है. जब ट्रैवलिंग रेट या ट्रांसफर रेट इक्वल होगा तो हम कहेंगे उसका रिएक्शन क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम में आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि आपको इक्विलिब्रियम रिकॉग्नाइज करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहिए. कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने में हम फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करें या केमिकल मेथड्स को इस्तेमाल करें. अगर आप डिफरेंट फिजिकल मेथड्स की बात करते हैं जिनसे आप चेंज इन कंसंट्रेशन डिटरमिन कर सकते हैं तो उनमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मींस स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट डालते हैं और वो उस लाइट की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करती है. इट मींस आप IR या UV विजिबल लाइट जब किसी सब्सटेंस पे डालेंगे वो उस लाइट को स्प्रेड करती है. उस स्प्रेडिंग की बुनियाद पे आप क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. या हम मेथड में बात करते हैं रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड. रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड में हम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड पर बात करते हैं कि सब्सटेंस कितनी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, इस पे हम बात कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स लाइक डायल्टोमेट्रिक मेथड, लाइक कंडक्टिविटी मेथड. देयर आर सो मेनी फिजिकल मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन. और जब आप केमिकल मेथड्स पे बात करते हैं तो केमिकल मेथड्स में कंसंट्रेशन को चेक करने का सबसे कॉमन और इजीएस्ट मेथड इज टाइट्रेशन मेथड. टाइट्रेशन मेथड एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें आप एसिड बेस या सब्सटेंसेस के वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करते हैं और चेंज इन वॉल्यूम की बुनियाद पे आप कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. रिमेंबर, वेदर वी फाइंड एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, द रिकॉग्निशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डन ओनली इफ there is no change in the concentration of product or reactant. So concentration can be determined by any of the method. Thank you for watching.